हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज चरणदीप सिंह। सो किਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਆਈ ਹੋਪ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਿਊ ਚੈਪਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਓਕੇ, ਸਮਸ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸੇਮ ਸਮ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ? ਕਨਸੈਪਟ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਦੀ, ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕੁਝ ਸਮਸ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਸਮਸ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਸਮਸ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ। ਓਕੇ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖिए, ਚੈਪਟਰ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਸੋ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਈਡੀਅਲ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ 8th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ 10th ਵਿੱਚ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ, 9th ਵਿੱਚ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆਇਆ। ਹੁਣ 10th ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੈ ਕੁਝ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਿੰਪਲ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ax plus by plus c is equal to 0। ठीक है, ये साडी जनरल फॉर्म है। दो वेरिएबल्स आ गए, x एंड y, c साडा कांस्टेंट आ गया। हियर a इज कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c इज कांस्टेंट। तो हमेशा साडी हर एक लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म च हुंदी है। ठीक है, लीनियर तो मतलब मींस 1 डिग्री। ओके, ਅਸੀਂ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कीता, दैट मींस 2 डिग्री। लीनियर मींस 1 डिग्री। तो जिन्नियां भी इक्वेशंस देखने को मिलनी है 1 डिग्री वाली ही देखने को मिलनी। ओके, सो a b and c तीन नंबर्स ने। a is coefficient of x, b coefficient of y, c is constant। ओके, सो फर्स्ट ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ। ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅ ਲਾਈਨ। कि लाइन किस तरह मान रही है? प्रॉपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ योर x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਂਡ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ। ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ, y ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨਿਕਾਲੋਗੇ। ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਵੀ ਸੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਕੇ, ਓਕੇ, ਵੀ ਪੁੱਟ ਸਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ x, पुट x in this equation, in linear equation, we get y। So x and y are our solutions, okay, that means x ਦੀ और y ਦੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਨੇ ਜੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਚ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ। ਸੋ x ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ, y ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ, और ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ। ਸੋ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵੀ 2 ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ 2 ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ x ਐਂਡ y, ਸੋ 2 ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਦੈਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਿਊਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੁੱਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 2 3। ਆਪਾਂ ਅਸਿਊਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਓਕੇ, ਹੋਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ, ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ, ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਂਡ ਵੈਲਿਊ ਆਫ k ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਅਗੇਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਆਡਰੇਟਰ ਚ ਅਨਨੋਨ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਨਨੋਨ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। ਸੋ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟ। देखो, जनरल फॉर्म ਸਾਨੂੰ given है ax plus by plus c। let two equations, equation number 1 is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। second is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ओके, सो दो इक्वेशंस ने, सॉल्यूशंस होंगे इन्हां दे कुछ ना कुछ। एक्स एंड वाई एक लाइन रिप्रेजेंट करेगी। सो ये इक्वेशन एक लाइन रिप्रेजेंट करेगी, सॉरी लाइन 1, एंड ये रिप्रेजेंट करेगी लाइन 2। ओके, सो लाइन मींस एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऊपर कुछ लाइंस बननी है साडी इस तरीके नाल। ओके, कुछ लाइंस डिनोट की जाएंगी जो एक स्पेशल नाल डिनोट होएगी। लाइक इट इज अवर लाइन 1, यू कैन से लाइन 1 जो इस इक्वेशन ने बनाई सी, एंड ये लाइन 2 है जो इस इक्वेशन ने बनाई सी। ओके, सो करांगे सब तो पहली गल
कुछ कॉन्स्टेंट गिवन ने, सिंपल चीज सोल्यूशन कड्डे बिना, ग्राफ बनाए बिना, ग्राफ प्लॉट किए बिना ਅਸੀਂ देखना होवे कि लाइनस ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ओके, लाइनस ਸਾਡੀਆਂ किस तरह ਦੀ ਬਣਨੀ, ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ किस तरह ਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। सो कुछ मैथड्स ने ਸਾਡੇ ਕੋਲ। फर्स्ट मैथड इज ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਿੰਨੋਂ डिवाइड करना है, a1 over a2, then b1 over b2 and c1 over c2, ਤਿੰਨੋਂ डिवाइड करना है। अगर ਤੁਸੀਂ डिवाइड कर रहे हो एंड ਤਿੰਨੇ इक्वल नहीं आ रहे, ਤੁਸੀਂ डिवाइड किया a1 ਨੂੰ a2 ਨਾਲ, b1 ਨੂੰ b2 ਨਾਲ, c1 ਨੂੰ c2 ਨਾਲ, ਤਿੰਨੇ इक्वल नहीं आ रहे, then ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, then these are making intersecting lines, intersecting lines। जिथे ਤਿੰਨੇ ਹੀ इक्वल ना होਣ, a1 by a2 is not equal to b1 or b2 is not equal to c1 by c2, इथे intersecting lines ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। that means like this, intersect ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ intersect ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ intersect ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो एक सोल्यूशन होएगा, दो पॉइंट पे हो रही ने दो सोल्यूशंस होंगे, तो इतने कितने पॉइंट ने, एक पॉइंट, तो इट हैज ओनली वन सोल्यूशन, वन सोल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट आ गई इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड आ गया वन सोल्यूशन। ओके, फॉर दिस सेकंड, इफ a1 over a2 is equal to b1 over b2 is equal to c1 over c2, फर्स्टली ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਦੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਸੋ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 c2, ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਨਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ, that coincident lines, coincident lines। ओके, सो coincident lines ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ अगर ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਟੇशियन प्लेन बना रहे हैं तो दो लाइन्स ने, एक लाइन समझ लो इथों ड्रॉ की इदा करके, साडी लाइन 1 ए वाली है, अगर लाइन 1 के ऊपर ही लाइन 2 आ जाए, सेम लाइन 1 के ऊपर ही लाइन 2 प्रॉपर कोइंसाइड कर जाए, देन ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ दैट आर कोइंसिडेंट लाइन्स। ओके, एंड कदों करनी है, जो ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ रेशो इक्वल होए, a1 by a2 is equal to b1 b2 is equal to c1 by c2। ओके, सो अगर इंटरसेक्ट कर दी पई इन्होंने बार बार है ना, हर एक पॉइंट इंटरसेक्टर पॉइंट बनता पाया, हर एक पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, हर एक पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो लाइन तो इनफाइनाइट होंगी है ना, लाइन तो आप इनफिनिटी तक खिंच सकते हैं, तो दैट मीनस पॉइंट्स भी कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। सो इस इक्वेशन को इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ने। ओके, सो जी इदा की इक्वेशन बनेगी तुहाडे, जिथे भी कॉन्स्टेंट लाइन्स बनदी पे ने उत्थे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनदे ने, तो जिथे तिन्ने ज हमेशा इक्वल होणगे। ओके, सो फर्स्ट असीं कीता तिन्ने इक्वल नहीं ने रेशोस, सो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होणगियां। ओके, इंटरसेक्टिंग ओनली वन सॉल्यूशन बिकॉज ओनली वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुंदा है। सैकेंड, तिन्ने इक्वल ने तो कॉन्स्टेंट लाइन्स, इतने इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे बिकॉज सारियां ही लाइन्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिंदियां ही पईयां ने। एंड थर्ड एंड लास्ट, if a1 over a2 is equal to b1 over b2 but it is not equal to c1 by c2, मीन्स कोई दो इक्वल ने रेशियोस पर तीसरी रेशियो इक्वल नहीं हैगी, a1 by a2 is equal to b1 by b2 but it is not equal to c1 by c2, so we say these are our parallel lines, parallel lines। तो पैरेलल लाइन किस तरह होंगे ने, समझ लो लाइन नंबर 1, अगर ये लाइन 1 है तो सिमिलरली इदा दी एक लाइन 2 होएगी सेम, कितने भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, असं इनफाइनाइट नंबर तक इन्हें एक्सपैंड कर दीए, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो दैट मीन्स दे आर पैरेलल लाइन्स। तो अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही सॉल्यूशंस होंगे है ना, असं की कहा सीगा कि इंटरसेक्ट करेगी तो एक सॉल्यूशन है, कर दी जाएगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ने, तो अगर इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही कोई सॉल्यूशन होएगा, यस, दिस इज हैव नो सॉल्यूशन, दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ओके, सो कभी भी तो दो इक्वेशंस गिवन ने, तुसी तो ये दसना है कि दोनों इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस बन रहे हैं। ओके, सो तुसी इस तरह वेरीफाई कर सकते हो, सिंपल दोनों के रेशियो डिवाइड करो, अगर तिन्ने रेशियोज इक्वल ने सो इंटरसेक्टिंग लाइन्स ने, वन सॉल्यूशन है, अगर तिन्ने इक्वल हैगे ने तो नहीं इक्वल सीगे, अगर तिन्ने इक्वल हैगे ने तो कोइंसिडेंट लाइन्स ने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ने। एंड अगर सिर्फ पहले दो इक्वल ने दैट मीन्स कोएफिशिएंट वाले नंबर्स इक्वल ने, कांस्टेंट इक्वल नहीं हैगा, कांस्टेंट रेशियो इक्वल नहीं हैगी, दैट मीन्स ये पैरेलल लाइन्स ने, जहां कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सो वी आल्सो से दैट इट इज आवर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, inconsistent solution, and these two are our consistent solutions। okay, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ consistent solutions हैं।
तो जरूरी नहीं है तो सिर्फ इतना क्वेश्चन आएगा कि show that these lines are having one solution or infinite solution. They can also say verify the lines are having consistent solution or inconsistent solution. ओके, आई होप ये समझ लगा होगा, बहुत कह लो कि इतना टफ नहीं सीगा, बहुत ईजी सी। बस अपन दो लाइंस गिवन है, ऑलरेडी इक्वेशंस गिवन है ਤੁਹਾਨੂੰ, ओके, बस कोएफिशिएंट्स अलग लिख ले, डिवाइड भी फॉर्म च लेके आए, एंड अगर कोएफिशिएंट इक्वल नहीं ने रेशियोज तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वन सॉल्यूशन, इक्वल ने कांस्टेंट लाइंस इनफिनिट सॉल्यूशंस, एंड अगर पहले दो इक्वल है थर्ड इक्वल नहीं है तो पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन। ओके, इज द वन सॉल्यूशन होएगा इनफिनिट, नो, ए कंसिस्टेंट ने, ए इनकंसिस्टेंट। तो एक एग्जांपल कर लिए, राइट, तो एग्जांपल कर लेने, देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो तुसी, राइट। सो एक एग्जांपल करते हैं, let two lines are 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Okay, first thing. Second, we have 3x plus, you can say, 9y minus 6 is equal to 0. Okay, so दो lines आ गई, एक और पेड़ ले लेने, same 2x plus 4y plus 3 is equal to 0. ओके, थोड़ा चेंज करते हैं, 2x plus 4y is equal to minus 3 and 4x plus 8y is equal to minus 6. सो दो का सोल्यूशन साढ़े क्वेश्चन कर लांगे, दो लाइंस दसांगे कि एक किहड़ा पेयर बन रहा है, वो किहड़ा पेयर बन रहा है। तो पहला देखो बेटे, तुहाडा A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2 निकालो। A1 by A2 फर्स्टली इक्वल लिख दिया करो, बाद में देखेंगे आप इक्वल बन रहे कि नहीं बन रहे, इज इक्वल टू C1 by C2। सो A1 by A2 is 2 by 3 equal to B1 3 by 9 and C1 by C2 is minus 8 by minus 6। करो कटिंग करो जितनी हो रही है, यदि तो होगी नहीं, ऑलरेडी रिड्यूस ही है, इस दी 3 1 3 3 3 9 एंड इस दी माइनस ना माइनस कट हो गए, then 2 4 are 8, or you can say and 2 3 are 6। so equation मान रही है 2 by 3 is equal to 1 by 3 is equal to 4 by 3। so तिन्ना जो कुछ भी सेम नहीं आ रहा, ना ये दोनों इक्वल ने, ना कोई लास्ट वाले नाल इक्वल है, ना तिन्ने ही इक्वल ने, या तिन्ने नॉट इक्वल आ रही ने, दैट मीन्स ऑल थ्री आर नॉट इक्वल। सो किहड़ियां लाइंस होंदियां नॉट इक्वल वाली, इंटरसेक्टिंग लाइंस, दैट मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस को कितने सॉल्यूशन होंगे ने, सिर्फ वन सॉल्यूशन। सो इस इक्वेशन को सिर्फ एक सॉल्यूशन ही होएगा। ओके, इन्हां को एक ही एक्स एंड वाई की वैल्यू होएगी जो इन्हों वेरीफाई या कह लो प्रॉपर कंप्लीट करेगी। सेकंड सेम यही A1 by A2, A1 B1 नाउ C1, दिस इज नॉट अवर C1, फिलहाल साडा C1 नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, बिकॉज साडी लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म इज ax plus by plus c is equal to 0। सो इक्वल टू 0 होनी चाहिए है। तो फर्स्ट बेटा अपन 0 च कन्वर्ट करेंगे, तो यह -3 है, 2x plus 4y ट्रांसपोज करेंगे बन जाएगा +3 is equal to 0। -6 है, 4x plus 8y ट्रांसपोज करेंगे बनेगा +6 is equal to 0। ओके, नाउ तो A1 A2 B1 होएगा, A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2। करो डिवाइड, 2 by 4 is equal to 4 by 8 is equal to 3 by 6। कटिंग करेंगे, 2 1s are 2 2 2s are 4 4 1s are 4 4 2s are 8 3 1s are 2 3 2s are 6। so 1 by 2 is equal to 1 by 2 is equal to 1 by 2। सो तीन रेशो सेम आ गया, अगर तीन रेशो सेम ने सो किहड़ियां लाइंस ने, कोइंसिडेंट लाइंस, राइट। सो दीज आर आवर कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, सो इन्हां दे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, दैट मीन्स बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं जो कि इन दोनों इक्वेशंस को वेरीफाई करते होंगे। बहुत सारी एक्स दी वैल्यूज, बहुत सारी वाई दी वैल्यूज हो सकती ने, जिन्होंने सारी दोनों वैल्यूज या दोनों इक्वेशन सैटिस्फाई हो जाएंगे, लाइक लैफ्ट साइड राइट दे इक्वल हो जाएगी, तुम ये भी कह सकते हो। बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, इन्हों की सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है, सिर्फ एक ही एक्स से एक ही वाई की वैल्यू हो सकती है, जिस नाल दोनों वेरीफाई हो जाएंगे, लैफ्ट तो राइट इक्वल हो जाएगी, राइट। तो देखो एक बार दोबारा देख लेने, असं की किया अज, असं तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन कहना सॉरी, तीन इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस। ओके, तिना दे वेरीएबल्स जनरल फॉर्म लिखी,
ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਲਿਖੀਆਂ, ਅਗਰ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨੇ तो दोनों रिलेशंस की बनते हैं, अगर तक कोफिशिएंट्स दी रेशो इक्वल है डैट मीनस वो कॉन्स्टेंट लाइंस ने, अगर इक्वल नहीं है डैट मीनस वो इंटरसेक्टिंग लाइंस ने, अगर पहलियां तो इक्वल ने वेरिएबल्स वालियां एंड कॉन्स्टेंट इक्वल नहीं है डैट मीनस वो साढ़े 9 सोल्यूशन बन गए पैरेलल लाइंस ने। ओके, आई होप इन्हें समझ लग जाएगा। देन एग्जांपल्स, तो इदा ही एग्जांपल गिवन होएगी सम इस तरह भी कहेंगे कि यू हैव एमसीक्यू, दो इक्वेशंस गिवन ने, दोनों इक्वेशंस किहड़ियां लाइंस बनदी पे ने, दीज आर इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कांस्टेंट। सिंपल तुसीं a1 by a2 b1 by b2 करना है तो देखोगे ओके ये इंटरसेक्टिंग लाइंस ने, ये कांस्टेंट ने, अगर पहले दो इक्वल आ जाते थर्ड इक्वल ना होंदा तो पैरेलल लाइंस बन जानी सी। ओके, सो यही साडी अज दी क्लास होएगी, सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दैन इस चैप्टर के जिन्ने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ओके, वो न्यूमेरिकल्स स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स होणगियां, साडा सबस्टिट्यूशन मैथड, दैन एलिमिनेशन मैथड आपां सारे ही करांगे। ओके, सारे रिलेटेड आप इंपॉर्टेंट सम करांगे जो कि बोर्ड चांसेस ज़्यादा। ओके, बेसिक वाले भी स्टैंडर्ड वाले भी, तो टेंशन ना लियो, सिर्फ कॉन्सैप्ट वाल ध्यान दिओ कि सारा कॉन्सैप्ट ही लगता पाया, जो लाइन्स बारे पूछदा किते भी टाइप्स ऑफ लाइन्स किहड़ियां ने, कॉन्सैप्ट ही लगता पाया। ओके, इस कॉन्सैप्ट नाल भी एक होर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो वैसे तो बोर्ड च एक्सरसाइज घट है पर उसका एक क्वेश्चन आ जाता तुहानूं। ओके, लाइक इत्थे किते तुहानूं करेंगे P इज नॉट गिवन, इट इज K। ओके, सो K गिवन हुंदा तुहानूं एंड कहेंगे दी लाइन ऑलरेडी इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो ऑलरेडी कहेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस ने, चाहे ऑलरेडी कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनते हैं इन्हां दे। ओके, चाहे ऑलरेडी कह देंगे कांस्टेंट लाइंस ने। ओके, दैन तुसीं के दी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये भी असीं क्वेश्चन करांगे। अज दे लई इन्ना सीगा दोनों इक्वेशंस, आई होप तुहानूं ये चीज़ समझ लगी होएगी। ओके, सो रिवाइजन अपनी बेटा स्टार्ट करो, ताकि ऑलमोस्ट 4 मंथ ने, बट रिवीजन के लिए 3 मंथ्स, नवंबर दिसंबर एंड जनवरी, फैबररी मार्च थोड़ी रिवीजन ली नहीं, प्रैक्टिस ली होंदा है। ठीक है, हुण तुसीं बस जो नवीं चीज़ कर रहे हो हुण कर सकते हो, दैन तुसीं जो तुसीं ऑलरेडी कर लिया उसकी प्रैक्टिस करना। ओके, सो दैन दिस इज अवर क्लास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, इदां दी होर वीडियोज़ इंफॉर्मेटिव लैंदे रहांगे, प्लीज़ ज्वाइन कर लो, सबसक्राइब कर लो चैनल नूं। ओके, तो कोई नवीं इंफॉर्मेटिव वीडियो तुसीं चाहते हो किसी टॉपिक पर बनाई जाए, मैथ्स दे या साइंस दे, तुसीं दस सकते हो, असीं वो भी नाल ही लैके आवांगे। ओके, सो यस, थैंक यू एवरीवन, बाय क्लास, बाय स्टूडेंट्स, बाय एवरीवन।